Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the chapter second. Before this, we have completed the chapter first operating system, and I have already given you assignment of chapter first operating system regarding operating systems on your official WhatsApp group. You have to submit this assignment of chapter first before due date 18th June. Now we are going to start the chapter second, system development life cycle. It is very important chapter. It is basically in the domain of software engineering and requirement engineering. First, what is software engineering? Before going to define software engineering, I want to define that what is computer sciences. Computer science is basically the branch of physical science in which we study about its history, software, hardware, and its peripheral components, the generation of computer system. And what is the software engineering? Software engineering is the basically the engineering method or techniques we apply by using the computer science skills to develop a fruitful and quantifiable software for the customer needs. Now we are going to start the system development life cycle, which is in the domain of software engineering. What is system development life cycle? System development life cycle is basically the software models that we have applied to develop a fruitful or quantifiable product, software product. In software engineering, system development lifecycle is the process of creating or altering information system. These are the models and methodologies that experts use to develop these systems. So software system development lifecycle is a problem solving process through which a series of steps or phases helps to produce a new computer system. Class, many students are still joining. So I request all these students and suggest all the students to join the class accurately at 9:40 because it is not 10 minutes late. And today is our important chapter regarding software engineering system development life cycle. Now I again start from the definition. Software engineering is basically the engineering practices, the engineering methodologies that we apply to develop a fruitful software product, for our system, for our software, according to the user requirements, according to the user need or customer need. You are seeing the definition of system development lifecycle on the screen. It is, and system development lifecycle is basically a model. There are a number of models in the software engineering that we can apply, that we can use to develop our software, and system development lifecycle is one of that model. It is a problem solving process through which a series of steps or phases helps to produce a new computer system. What is software engineering? I have already told, it is the application of engineering to software. That is, we can say the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development
operation and maintenance of software. Software engineering use their computer skills to create product of practical use and economic values. Further students are joining the IEC first. Now again see the definition. It is software engineering that we have applied the engineering methods by using our computer skills to develop a fruitful or quantifiable or cost-effective software solutions. In this chapter, we will study the basic steps. We will study the main steps of system development life cycles, that how we can apply these steps to develop a fruitful software. So the difference between computer sciences and software engineering is that computer science deals with all the application of computers, software, hardware, its generation, etc. But software engineering is particular the use of engineering skills to develop a quality software. And its second definition that software engineering, it is concerned with all the aspect of software production from the early stage of system specification through to maintaining the system after implementation. This is page number 25, chapter 2nd, page 25 on your textbook. I again repeat it, chapter 2nd, page 24th, 25th, and 26th, and 27th, 24th, 25th, 26th, 27 of your computer textbook. What is importance of SDLC? What is the importance of SDLC? So SDLC means System Development Life Cycle. I have already told you that there are many methods, many models in software engineering. Out of them, one is System Development Life Cycle, that it is also known as waterfall model, that we apply in our most scenario to develop a fruitful or quality software. The importance of SDLC, as you are seeing on the screen, first, it deliver quality software which meet the system requirement. कि आफ्टर गोइंग दिस, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या होता है कि आपको एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर मिल जाता है जो कि यूजर की और कस्टमर की नीड के मुताबिक होता है. Second, it ensures that requirements are well defined according to the customer need or user expectation. When the software engineering team is developing a new software, or software development teams are designing the new software for any institution, school, college, organization, or business organizations, then first they have to define the customer need or user expectation. जनरली क्या होता है कि एक मैनुअल सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है, उसकी इनपुट्स होती हैं, उसकी आउटपुट्स होती हैं, उसमें ड्रॉबैक्स होते हैं. उस मैनुअल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए कंपनी के अंदर या उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सॉफ्टवेयर टीम को हायर करते हैं. तो वो उस मैनुअल सिस्टम को स्टडी करते हैं और उस मैनुअल सिस्टम के इनपुट आउटपुट देखते हैं, और फिर वो एक ऐसा कंप्रोमाइज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बना के देते हैं कि जो यूजर के अकॉर्डिंग जो उसको यूज कर रहे हैं उसमें यूजर फ्रेंडली भी होता है और जो कस्टमर की नीड को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और दैट इज अप टू डेट एंड दैट आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, यूजर, मैनेजर एंड ऑनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन. थर्ड थिंग इज इट डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम, कि वो जो सिस्टम होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, वो इतना हाईली कॉस्ट ना हो कि वो इंस्टीट्यूशन उसको परचेज ना कर सके, ठीक है, और इतना लो स्टैंडर्ड भी ना हो कि उसको अगर इंप्लीमेंट कर दी जाए तो सिस्टम में किसी तरह की अपग्रेडेशन या अपडेशन नहीं है और एक बराए नाम सिस्टम हो. तो ये सारी चीजें SDLC जो टीम होती है उसको देखती है. फोर्थ, इट मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की, किसी भी इंस्टीट्यूशंस की जो आउटकम में जो प्रोडक्टिविटी है, तो जब उस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट इंस्टॉल किया जाए, उस SDLC टीम जब उसको इंप्लीमेंट करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी आउटकम इंक्रीज हो जाए और सिस्टम जो है वो स्मूथ रनिंग करना शुरू कर दे. All these things are based on the expertise of SDLC,
are based on the customer needs, customer requirements, user needs, etc. What are the objectives of SDLC? These are the three main objectives of every system development life cycle teams. System development life cycle. First, it ensure that high quality system are delivered. ऑलरेडी एक पुराना जो सिस्टम काम कर रहा है ओल्ड सिस्टम मैनुअली उसमें ड्रॉबैक्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो सॉफ्टवेयर टीम ने एक ऐसा सिस्टम बना के देना होता है जो कि हाई क्वालिटी हो और जो कि इन तमाम चीजों को डील करे और एक हाई क्वालिटी सिस्टम जो है वो डिलीवर हो। सेकेंड है इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट। उसके बाद मैनेजमेंट के ऊपर मैनेजमेंट जो है वो उसका जो कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्ग हो ओवर द प्रोजेक्ट। एंड थर्ड है इट मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। ये क्या करे, जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी को ये इंक्रीज कर दे। इट मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी, जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी को ये सिस्टम जो है वो इंक्रीज कर दे। So these are the three basic objectives of SDLC. Students, you should know that it may be a short question to write down the objectives of SDLC and what are the importance of SDLC. No, you have to learn these points and write it accordingly. What are stakeholders of SDLC? एक सिस्टम जब इंप्लीमेंट होने जा रहा है, एक न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट होने जा रहा है, उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? Stakeholders of SDLC are those entities or group which are either within organization or outside of the organization that sponsors, plan, develop or use a project. Stakeholders वो होते हैं जो कि किसी भी इदारे के उस ग्रुप के अंदर भी हो सकते हैं, इदारे के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन उनका उस प्रोजेक्ट के ऊपर, सॉफ्ट के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। Stakeholders may be user, managers and developers. Stakeholder user भी हो सकते हैं, managers भी हो सकते हैं, developer. Now first I seen that many students are still joining. I have already requested you to join the class at time. Today our time was 9:40 AM. So please join the class on time. Still students are joining the class. This is very important short question. What are the stakeholder of SDLC? I again explained it. जब भी आप एक मैनुअल सिस्टम को खत्म करके एक कंप्यूटराइज सिस्टम ला रहे होते हैं तो उसमें कई लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होते हैं, जिनके नेगेटिव एटीट्यूड से वो सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी टीम है कि वो उसको कैसा लेके चलती है। सेकंड, ऑनर ऑफ द डैट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन। थर्ड, द पर्सन वर्किंग हियर। फॉर एग्जांपल, सम पर्सन आर वर्किंग एज एंड यूजर, जो एंड यूजर्स को यूज करना चाह रहे हैं वो उसको कैसा डील करेंगे, वो उस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं या उस चेंजिंग को रिजेक्ट करते हैं। फिर देयर आर मेनी मैनेजर्स वर्किंग इन दैट कंपनी, जो उसको मैनेजर्स हैं, क्या वो उस सिस्टम को होपफुली और वेलकम कर रहे हैं या उसमें से वो उसको जो है ना वो रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह बात का ऐसा था कि जिस सिनेरियो में ये सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा होता है वहां पे कंपनी के अंदर तो या इंस्टीट्यूशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो टीम चाहती है इसको इंप्लीमेंट करना, लेकिन जो इर्द गिर्द की जो सोसाइटी है या जिस सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन काम करे, वहां जो पीपल है या पर्सन है, जो प्राइवेट ग्रुप है, वो एक रिएक्शन शो करते हैं और उस रिएक्शन की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑल दीज persons, people within the organization and outside the organization that have directly impact on the software development team, software, fruitful software, quality software, that are known as the stakeholders of the software development life cycle. And generally these stakeholders may be users, managers and developers. Third, it is the duty of project management team to identify the stakeholders, their requirements and expectation. So project management team के जो personnel हैं, जो manager हैं, जो उसको deal कर रहे थे, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो identify करें, किसको identify करें कि stakeholder कौन कौन से हैं,
कि इसमें स्टेक होल्डर कौन से हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी और उनकी एक्सपेक्टेशन कौन कौन सी। Now we will move towards the SDLC steps. The following are the SDLC steps. These are the main steps. First, defining problems. Second, planning. Third, feasibility study. Fourth, analysis. Fifth, requirement engineering. Sixth, design. Seven, coding. Eight, testing and verification. Nine, deployment or implementation. 10, maintenance and support. Now I will briefly define and we will study it in detail. What is defining stage? What is defining the problem? First is the defining. In this stage we have to define the problems के जो manual system में जो problems आ रही वो कौन कौन सी है, मैनुअल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैनुअल सिस्टम की जो मौजूदा सिस्टम की इनपुट कैसे आ रही है, मैनुअल सिस्टम की आउटपुट कैसे जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल किसी दायरे में जिस तरह एक नादारा सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ, उससे पहले कि ये एक बिल्कुल मैनुअल सिस्टम था, एक पटवारी सिस्टम था जो कि मैनुअली एक शनाख्ती कार्ड बनाकर देते थे और उसके ऊपर वो हाथ से लिखे देते थे और वो एक पर्सन जाता था उस शनाख्ती कार्ड को बनाने के लिए, वो उसके बाद वो अपनी तो पिक्चर दे के आता था, उसके बाद महीना 2 महीने बाद जाके वो उसको शनाख्ती कार्ड मिलता था, उसके ऊपर एसी साहब के सिग्नेचर होते थे। एक मैनुअल सिस्टम था, उसकी इनपुट कैसे आ रही, उसकी आउटपुट कैसे आ रही। अब जो सॉफ्टवेयर टीम जिस तरह मौजूदा नादा सिस्टम में देखेंगे, अब क्या सिस्टम में अब काम कैसे हो रहा है, अब उसकी इनपुट कैसे, अब उसकी आउटपुट कैसे आ रही है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट्स। तो ये सारी चीजें डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स में देखी जाती हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम की इनपुट कैसे आ रही है, एग्जिस्टिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम की आउटपुट कैसे जनरेट हो रही है और सॉफ्टवेयर टीम ने उसके ऊपर कैसे काम करना है। All these things are checked in defining problem. It is very important problem. It is very important step. क्योंकि अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, अगर प्रॉब्लम रिकॉग्निशन ही गलत होगी तो उसकी बेस के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो भी गलत होगा और वो भी उसके भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू डिफाइन दी प्रॉब्लम्स एंड टू एनालिसिस देयर सॉल्यूशन। सेकंड स्टेप इज प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग स्टेप्स के अंदर all the objective of the project is determined and the requirement to produce the product are considered. प्लानिंग सबसे पहले क्या किया जाता है कि एस्टिमेटेड कोर, इसमें रिसोर्सेस कौन कौन से आपको चाहिए। सबसे पहले सॉल्यूशन देखा जाता है कि सॉल्यूशन कौन सी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उस सॉल्यूशन के लिए टेक्निकल रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, सॉल्यूशन जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसके लिए आपको फाइनेंस कितना चाहिए, बजट कितना चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होगा उसमें हार्डवेयर कितना यूज होगा, सॉफ्टवेयर, केबल्स और जो उसमें टेक्निकल थिंग्स है वो सारी चीजें प्लानिंग में डिस्कस की जाती हैं कि आया ये जो अच्छा सिस्टम है, जो हम सिस्टम बना के दे रहे हैं, ये जो कंपनी इस सॉफ्टवेयर को, न्यू सॉफ्टवेयर को अफोर्ड कर सकती है या नहीं, जो कस्टमर यूजर काम कर रहे हैं वो इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं या नहीं। ऑल दिस थिंग इज स्टडीज इन द प्लानिंग स्टेज। रिसोर्स प्लानिंग, कॉस्ट से रिलेटेड थिंग्स, तमाम चीजें प्लानिंग के अंदर स्टडी, और ये भी देखा जाता है कि इसके अलावा कौन कौन से अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं और जो बेस्ट जो प्रपोज सॉल्यूशन है वो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। स्टेप 3 इज द फिजिबिलिटी स्टडी। व्हाट इज द फिजिबिलिटी स्टडी? Feasibility studies is the analysis and evaluation of proposed project system to determine whether it is technically, financially, economically, legally and operational feasible within the estimated cost and time. फिजिबिलिटी स्टडी में देखा जाता है कि टेक्निकली कि जो हम जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बना के दे रहे हैं क्या वो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वो फिजिबल है, उसमें उसके तमाम कॉन्स्टेंट्स, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स, उसमें जो उसमें हर्डल आ रही है, तमाम चीजें डिटेल देखी जाती हैं। और एट द एंड ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी, हमेशा फिजिबिलिटी स्टडी के एंड पे जो उसकी रिपोर्ट होती है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट की जाती है और वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हायर मैनेजमेंट को प्रेजेंट की जाती है। देन द हायर मैनेजमेंट डिसाइड्स whether we should continue to develop that software solution or whether we should drop.
So it is very important in any SDLC. What are the feasibility studies? What are the feasibility reports? What are their outcomes? And the next thing is analysis. What are the analysis phase? It is the very important phase. Basically the project team, the software team determines the end user requirement. Class, this is on page 28 on your textbook. What is analysis phase? During the analysis phase, the project team determines the end user requirements. The project team asks the following question during the analysis. ये अपनी उस टीम से ये क्वेश्चन आस्क कर सकती है, कैन द प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम बी डेवलप्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट? Will this system significantly improve the organization? Does the existing system even need to be replaced? यानी पहला क्वेश्चन करेगी, क्या जो हमारे पास जो प्रपोज सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जिसमें हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, केबल चाहिए, जो हमारे पास फाइनेंस है, जो बजट अप्रूव हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम बन जाएगा? और ये जो नया सिस्टम है, क्या ये इंप्रूव करेगा सिस्टम को? इससे सिस्टम के रिजल्ट्स, आउटकम इंप्रूव हो जाएंगे? Will this system significantly improve the organization? और थर्ड है कि does the existing system even need to be replaced? क्या existing system जो है वो अभी जो काम कर रहा है उसमें क्या इतने प्रॉब्लम्स हैं कि इसको हमने लाजमी रिप्लेस करना है, और उसको रिप्लेस करके हम जो प्रपोज सिस्टम लाना चाह रहे हैं उसको हमने इंप्लीमेंट करना है? ठीक है, तो यानी एनालिसिस इज बेसिकली द complete study of proposed system, proposed input, the input of proposed system, the outcome from the proposed system. डिफाइनिंग में हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी इनपुट आउटपुट कैसे जनरेट हो रही हैं, और एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है. बट इन द एनालिसिस स्टेज वी फोकस्ड ऑन द प्रपोज सिस्टम, कि जो हमने प्रपोज सिस्टम सेलेक्ट कर लिया है वो प्रपोज सिस्टम कैसे काम कर रहा है, प्रपोज सिस्टम की इनपुट कैसे आ रही है, प्रपोज सिस्टम की आउटपुट कैसे आ रही है. These all things are studied in the analysis stage. And next is the requirement engineering. What is requirement engineering? Basically it is a set of activities used to identify and communicate the purpose of a software system and the framework in which it will be used. It is the process of determining user expectation for a new or modified system. First, I will complete the topic, then you may ask question. So, requirement engineering में क्या होता है कि हम we have to gather the requirements from the user. हम यूजर से requirement gather करते हैं, ठीक है, requirement gathering होती है. अब उसमें उसके तमाम रिक्वायरमेंट्स हम गैदर किए जाते हैं, उस रिक्वायरमेंट को देखा जाता है आया दीज रिक्वायरमेंट्स आर वैलिड और नॉट, एंड इट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चनियर, इंटरव्यूज, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन. यूजर से रिक्वायरमेंट गेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर एसडीएलसी टीम जो है वो जो जनरली मेथड अडॉप्ट करती है कि वो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन जाती है, क्वेश्चनर यूजर को दिए जाते हैं, उसके थ्रू फॉर्म फिल कराए जाते हैं और यूजर से मीटिंग्स की जाती हैं और उससे फॉर्मल और नॉन फॉर्मल वे में उससे रिक्वायरमेंट गैदर किए जाते हैं. और बेसिकली जो रिक्वायरमेंट गैदर किए जाते हैं, क्योंकि सिस्टम की दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फर्स्ट आर दी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड सेकंड आर दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करती हैं कि जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप होने जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर है वो ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा. और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं कि जिसमें ये देखा जाता है कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा और हाउ वेल द सिस्टम विल परफॉर्म इट्स ड्यूटी. इट डिस्क्राइब द जनरल क्राइटेरिया एंड द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड हाउ द पीपल विल एक्सेप्ट इट. तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि सिस्टम के फंक्शन से रिलेटेड नहीं होती बल्कि उसके ओवरऑल बिहेवियर से रिलेटेड होती है. एंड स्टेप 6 डिजाइन. वी विल स्टडी दीज स्टेप्स इन द नेक्स्ट. What are design?
डिजाइनिंग में उसके फ्लो चार्ट्स एल्गोरिदम डिजाइन किए जाते हैं। फर्स्ट एल्गोरिदम लिखे जाते हैं, सेकंड एल्गोरिदम लिखने के बाद सेकंड उसके फ्लो चार्ट डेवलप की जाते हैं। व्हाट आर द एल्गोरिदम? एल्गोरिदम आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट कंप्लीटली डिस्क्राइब द ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि स्टेप वन कैसे है, स्टेप वन स्टार्ट कैसे होगा, द इनपुट्स कहाँ से आएंगी और उसकी प्रोसेसिंग कैसे है, और उसके बाद जो है ना उसकी आउटपुट कैसे होगी, और कंप्लीट एक सीक्वेंस लिख लिया जाता है किसी भी इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, और उस एल्गोरिदम को कन्वर्ट किया जाता है फ्लो चार्ट्स में। फ्लो चार्ट्स आर द पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिदम। उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया जाता है। एंड देन उसके बाद जो कोडिंग टीम है, जो प्रोग्रामर है, वो उसको कोडिंग कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। कोडिंग जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हो सकती है, सी प्लस प्लस में हो सकती है, जावा में हो सकती है, वीबी में हो सकती है, और एनी अदर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग उसकी की जा सकती है। तो किसी भी लैंग्वेज में उसकी कोडिंग जो है वो की जा सकती है। कोडिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसका टेस्टिंग है, कि जब कोडिंग होने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, और जो टेस्ट किया जाता है वो अमूमन टेस्ट डेटा से किया जाता है। जो टेस्ट किया जाता है वो अमूमन किससे किया जाता है? टेस्ट डेटा से किया जाता है, कि जो टेस्ट डेटा मौजूद है उसके थ्रू उसको टेस्ट किया जाता है कि ये सिस्टम कैसा काम कर रहा है, और उसकी वेरिफिकेशन की जाती है, और ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम इसको सरंजाम देती है, और वो चेक करती है कि अगर यूजर को दिया जाए तो यूजर इसके ऊपर कैसे बिहेव करेगा। And this testing and verification is the very important phase of the software. Before delivering the software product to the user, we have to done testing and verification. उसके बाद ninth, deployment and implementation. Ninth, when the software is completed, it is implemented. इसको implement कर दिया जाता है. There are a number of ways to implement the software, and we will study these ways in the next lecture. And the last is point 10 is the maintenance and support. After the implementation, generally they require user or customer require the maintenance and support, and it is the responsibility of software development team to give them maintenance facility and support when they are executing the software, and when there is any hurdle or software system is blocked due to any reason or stop, then the software team and development teams goes to check the system, and they tries to remove the fault or debugs. So it is the maintenance and supports that checks the system. जनरली इन आवर कंट्री एक वारंटी कार्ड होता है, एक वारंटी पीरियड होता है जो 1 ईयर होता है। 1 ईयर तक अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर टीम आके उसको रिमूव कर देती है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मेरी अलग अलग वीडियोस भी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें डिटेल से, एंड वी विल कवर दिस टॉपिक इन दी नेक्स्ट सेशन। हम इसको कवर भी करेंगे इंशाल्लाह। These are the your assignment number 2, marks 20A, and we will cover these topic in during 3 or 4 next 3-4 दिनों में हम इन टॉपिक्स को कवर कर देंगे। फर्स्ट डे ब्रीफली राइट द पर्सनल इन्वॉल्व इन SDLC एंड देयर रोल। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो पर्सनल इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैनेजर हैं, और उनके क्या रोल हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड है राइट अबाउट प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम क्या चीज देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया। एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या चीज होती है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या चीज, एंड डिजाइनिंग फेजेस ऑफ SDLC। अब प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम क्या स्टडी करते हैं, मैंने आपको बताया कि वी स्टडी द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, प्रपोज सिस्टम। इस द फिजिबिलिटी स्टडी है जो पूरी टेक्निकली इकोनॉमिकली देखती है कि जो सॉफ्टवेयर जो नया सॉफ्टवेयर फिजिबल है या नहीं। Similarly, requirement engineering to gather requirements, we have studied the functional requirements and non-functional requirements, and what are the requirement validations and requirement managements. All these things in the requirement engineering. And design phase of it consists of algorithms, flow charts, and conversion of algorithm into specific coding. Okay, thank you. Now we exit from the screen.